Hi everyone, welcome to today's session. So today's session will be very short and sweet, but it's a very important session as far as trading is concerned. So let's straight get into it. Today, so before we start today's session, there are a few things which I would like to discuss with you guys. Um, can anyone tell me that can anyone be 100% sure in a stock market? No, No, right? So how can we minimize our risk? What are the different ways that we can minimize our risk? by seeing the history of the market. Okay. Even if we see the history, can we be 100% sure that what we are saying is actually correct? No, So how can, because right. So, yeah, so the question is, how can we minimize the risk? What if, चलो हमने कुछ मतलब हमने सपोज करो इन्फोसिस खरीद लिया 1000 शेयर एंड हमें मालूम है कि भाई 2% ऊपर जाएगा ये तो मतलब 1002 पे हम इसको बेच देंगे 1020 पे सॉरी 1020 पे इसको हम बेच देंगे तो हमारा 2% प्रॉफिट निकल जाएगा और विल सेफली मूव आउट ऑफ द स्टॉक बट अब अगर वो 990 जाना शुरू कर देता है 995 जाना शुरू कर देता है सो हाउ हाउ विल यू मिनिमाइज दिस रिस्क मतलब इस ट्रेड को किस तरीके से तुम अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हो like we can set the margin. Like we will get out of the market if this much we are getting loss, or and we should also do that for profit also. Like if I'm getting 10%, yeah, or like 4%, 2%, we have our own capacity, our own risk capacity, so we can just do that. Correct. Actually, you're correct. So basically, we'll have a threshold value where we'll say कि भैया इससे ज्यादा loss मैं नहीं झेल सकता. This is the last that I can, that I can bear. So that is known as my stop loss. That will be known as my stop loss. So ये basically क्या होगा कि भाई 995 के नीचे अगर गया ना तो मैं इतना रिस्क नहीं झेल सकता. I'll just put my stop loss over there. और भाई मैं अपना ट्रेड जो है लॉस में खत्म कर दूंगा फिनिश कर दूंगा क्यों क्योंकि 990 से वो 992 भी जा सकता है 990 भी जा सकता है 897 895 कुछ भी जा सकता है राइट सो आई डोंट वांट टू मैक्सिमाइज माय लॉस एंड बी स्टबर्न विद वन पर्टिकुलर स्टॉक ऐसा नहीं है so I'll just take my I'll just say that okay this is the risk that I'm going to take with the stock अगर इसके नीचे गया I'll just move on with other trades make sense so that's how you can minimize your risk and I mean what if we have done some wrong trade so this is what will help us and this kind of thing is known as stop loss where we say that भाई मेरा ये ट्रेड था मेरी रिस्क एपेटाइट 995 की थी 1000 रुपए का स्टॉक था मैं 5 रुपए झेल सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं अगर 5 रुपए नीचे चले गया so I'll just simply sell it off and I'll move forward to other trades this is what is stop losses ठीक है Now, what is a stop loss? Again, it is a measure of how much loss you are willing to bear, and how should we apply stop loss? Anyone? Um Ayush, Aisha, Alina, how should we apply stop loss? What should be our stop loss? Half of our profit margin, Okay, like Aisha. Depending on our bank balance, that this is how much we can bear. नहीं यार ऐसा नहीं होता है ना अगर आपका बैंक बैलेंस 1 लाख रुपए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि you will bear 1 लाख rupees loss in a single stock. That's wrong, right? Right. So you will always it's not an intuition but it is something there's no fixed mathematical formula as well Ayush but it would be something which you can bear तो आपको मालूम है कि भाई मैं अगर इस स्टॉक के ऊपर 15,000 रुपए प्रॉफिट कमाने वाली हूँ फॉर एग्जाम्पल जस्ट फॉर एग्जाम्पल so I can bear you know 1,000 2,000 5,000 rupees as a loss on this stock and I'm okay with that अच्छा हम स्टॉप लॉस लगाते क्यों हैं जब हम किसी चीज को बाय कर रहे हैं तो मतलब वो तो ऊपर ही जाना चाहिए ना तो हमें स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है ऊपर ही जाना चाहिए. It's not, nothing is sure ना. नथिंग इज श्योर बिल्कुल सही है एक पॉइंट तो ये हो गया दूसरा पॉइंट ये हो गया कि क्या अगर एंड आयशा आंसर दिस
क्या अगर मैं एक स्टॉक को 1,000 रुपए पे लाता हूँ, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है या दोनों डायरेक्शन में मूव करता है? मतलब विल इट बी Um, ऑलवेज विल इट बी ऑलवेज कि एक स्टॉक है वो 1,000 रुपए पहुंच गए तो अब 1,001, 1,002 वो ऐसे ही जाते रहेगा? no, no, it can come down. It can come down, right? So what if my stop loss gets hit, Ayush? Exit, we'll take exit of the market. Will take exit from the market. तो ऐसा नहीं है ना कि सो 1,000 रुपए का है, मैं 999 तो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकता ना, क्योंकि स्टॉक्स हमेशा ऐसे 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 मूव करते हैं. इट्स नेवर लाइक स्टॉक ऑलवेज गोज इन दिस डायरेक्शन और ऑलवेज गोज इन दिस डायरेक्शन. स्टॉक हमेशा वॉलेटाइल होता है, स्टॉक हमेशा ऊपर नीचे जाते रहता है, राइट? एवरी सेकेंड द प्राइस इज चेंजिंग. सो माई स्टॉप लॉस शुड बी इन सच अ फैशन, मतलब ये सिली क्वेश्चंस में इसलिए पूछ रहा था बिकॉज योर स्टॉप लॉस शुड बी इन सच अ फैशन दैट ऐसा ना हो कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, फिर तो हर स्टॉक में आप जिस पे भी स्टॉप लॉस लगाओगे उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली यू आर जस्ट लूजिंग मनी ऑन योर स्टॉक्स, on your investment, nothing else. So your stop loss cannot be on an intuition. Your stop loss should have some logic behind it. Make sense? People, make sense? Yes, yes. Okay. So We can also, sorry, no, we go can ahead. also do this thing na, like we will see the minimum of one day, like minimum क्या गया है उस स्टॉक का एक दिन पुराना, और उससे थोड़ा ऊपर we can apply this is my stop loss if it's under my capacity to bear that loss. यार व्हाट इफ आयुष एक दिन में वो मान ले उसने लो मारा है बहुत कम, 990 998 का, और अभी फिलहाल वो चल रहा है 1,000 पे. तो अब तुम उस हिसाब से, मतलब इट्स नॉट कि हमेशा लो जो रहेगा वो बहुत ही ज्यादा लो रहेगा, राइट? ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है. हो सकता है उस दिन वो स्टॉक मूव ही किया है सबसे ऊपर ही, मतलब ऊपर ही ऊपर गया है उस दिन, तो इस केस में तो आपका एल्गो फेल हो जाएगा, राइट? सो Uh, ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने अगर उसके प्रीवियस डे का लो पे ही अगर आपने स्टॉप लॉस मारा है तो वो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड, विल डिस्कस हाउ स्टॉप लॉसेस, what are the different types of stop losses that we can put in our trade. अच्छा, स्टॉप लॉसेस इन्वेस्टमेंट के लिए डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? एनीवन? डालना चाहिए. ओके, आयुष, sorry भैया, सुना नहीं कुछ. इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? या डालना चाहिए. ओके, ट्रेड में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? सॉरी, ट्रेड में डालना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में आई डोंट थिंक स्टॉप लॉस डालना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है. सो इफ वी आर इन्वेस्टिंग वी आर लाइक मोस्टली Confident about श्योर that कि stock. या या Correct. And it's a long term, right? It's a long term. Even अगर वो नीचे जाता है, all you have to do is you have to buy more stock and average it out. अगर आपके ऊपर आपको भरोसा है उस कंपनी के ऊपर, then all you need to do is you need to, it's an investment. It's not a trade. So stop losses are generally used for trading purpose. It's generally, although there is no hard and fast rule, you can use it for investments as well, but generally it is not for investment purposes. Investment में generally you average it out. क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेल रहे होते हो, आप शॉर्ट टर्म के लिए कुछ काम नहीं कर रहे होते हो इन्वेस्टमेंट्स में. Okay, so now let's try to understand the different types of stop losses. So basically we'll understand three types of stop losses, and generally यही तीन है जो मार्केट में यूज भी होते हैं, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं करता है. So these three types of stop losses are order stop losses, four types: order stop losses, trailing stop losses, support stop loss, and moving average. This will become a bit technical. We will be starting technical analysis really soon, but I'll try to explain it in as simple terms as possible. So order stop loss क्या होता है कि भाई मैंने सपोज करो इन्फोसिस खरीदा और वो इन्फोसिस मुझे 1,000 रुपए का पड़ा, मैंने बोला भाई अगर ये 995 चले जाएगा तो मैं सीधे सीधे इसको सेल कर दूंगा, तो ये मेरा ऑर्डर स्टॉप लॉस हो गया कि मतलब मुझे मालूम है 995 जाएगा, मैं इसको सेल कर दूंगा. बट देयर इज समथिंग, मतलब ये तो हो गया एकदम बेसिक सा स्टॉप लॉस. दूसरे तरीके का एक स्टॉप लॉस होता है विच इज नोन एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस.
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपको अगर आपको आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, सो यू विल जनरली गो फॉर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि भाई मेरा स्टॉक था, मैंने 1000 पे खरीदा उसको, इन्फोसिस था 1000 पे खरीदा, अब वो 1010 पे चले गए, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस को क्या करूंगा ना, मैं मेरे स्टॉप लॉस को भी बढ़ा दूंगा, कि भाई पहले मेरा 995 स्टॉप लॉस था, बट क्योंकि अब ये 1010 पे चले गए, तो मेरा स्टॉप लॉस मैं 995 से बढ़ा के 105 कर दूंगा। सो उससे क्या होगा कि अगर मान लो वो 105 टच भी करता है, तो मुझे एटलीस्ट 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। बट अगर वो उससे और ऊपर जाता है, तो मैं मेरे स्टॉप लॉस को भी उस हिसाब से बढ़ाते चले जाऊंगा। ये देखो यहाँ समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे 8,000 US डॉलर पे इसने एंटर किया, $500 का उसने स्टॉप लॉस मतलब मार्जिन लेके चला। अब जैसे ही वो 9,000 पहुंचा, तो उसने उसका स्टॉप लॉस भी मूव कर दिया, ताकि मान लो अगर मार्केट नीचे गिर जाए और इस पॉइंट पे आ जाए, तो उसको इतना प्रॉफिट तो मिल गया, राइट। जो ये 1000 पॉइंट, हाँ 1000 पॉइंट का नहीं, 1000 नहीं, 500 पॉइंट का तो एटलीस्ट उसको प्रॉफिट मिल गया, राइट। अब मान लो अब यहां से मार्केट और ऊपर चले गया, 9,000 मतलब 9,500 के आसपास पहुंच गया, तो इसका क्योंकि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसका स्टॉप लॉस भी बढ़ते जाएगा, और अल्टीमेटली जैसे ही उसका मार्केट प्राइस मान लो गिरना चालू हुआ और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट जितना गेन कर सकता था इस ट्रेड के ऊपर, उतना उसने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वजह से गेन कर लिया। सो ये एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा होता है। अगर वो नॉर्मल ऑर्डर स्टॉप लॉस लगाता तो क्या होता, भाई आपका जब तक 750 पे नहीं आता, 750 सॉरी 7,500 US डॉलर्स पे नहीं आता, तब तक वो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता, और स्टॉक क्या होता है, प्लंज होते जाता है। मान लो ऐसे गिरना शुरू कर रहा है स्टॉक, एकदम से कुछ बैड न्यूज आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक वगैरह गिरना शुरू कर रहा है, तो अब वो डायरेक्टली जो है 7,500 पे आपको 500 पॉइंट का एक्चुअली लॉस देके और फिर ट्रेड को कट कर लेता। बजाय उसके उसने क्या किया कि भाई उसने उसके स्टॉप लॉस को भी मूव किया, जिसकी वजह से उसने अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक कर लिया, और प्रॉफिट बुक करके वो बाहर निकल गया। तो ये था हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसके बाद आता है सपोर्ट स्टॉप लॉस। जनरली क्या होता है मार्केट में, जनरली कहा जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना मार्केट में, जहां पे कि लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं कि यार 16,000 पे आ गया है मार्केट, बस 16,000 टच कर जाए, 16,000 टच करने के बाद फिर मैं खरीदूंगा। तो जनरली क्या होता है कि वहां पे एक बैरियर बना हुआ होता है। उस बैरियर को मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। उस बैरियर को जनरली कहा जाता है कि भाई ये सपोर्ट है, कि मार्केट को, इस पर्टिकुलर स्टॉक को इस लेवल से नीचे नहीं गिरने दे रहा है मार्केट, या मतलब उसका वो सपोर्ट बना हुआ है, मतलब जैसे ही प्राइस वहां पे आता है, उस प्राइस को एक सपोर्ट मिल जाता है और वो ऊपर चढ़ना शुरू कर जाता है। या फिर इसी तरीके से एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि भाई ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके ऊपर स्टॉक नहीं बढ़ पा रहा है, कि भाई लोग जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे पहुंच रहा है, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये अब ओवर वैल्यूड हो गया है, अब हम सेल कर देते हैं, और लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेल कर दे रहे हैं इसको। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन हो जाती है, जो इस ग्राफ में दिख रहा, इस प्लॉट में दिख रहा होगा आपको। आप कोई भी स्टॉक निकाल के देखोगे ना, हर स्टॉक में ऐसा होता है कि देयर इज ऑलवेज अ सपोर्ट लाइन, देयर इज ऑलवेज अ रेजिस्टेंस लाइन। दिस वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट इन टेक्निकल एनालिसिस, बट फॉर नाउ एकदम मोटा मोटा समझ लो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, अल्टीमेटली इस पॉइंट नंबर 1 पे आया, बट यहाँ से लोगों ने इसको बाय करना शुरू कर दिया, बाय करना शुरू किया, और इस स्टॉक को यहाँ तक लेके गए, इस पॉइंट नंबर 1 तक। फिर यहाँ पे लोगों को लगा यार बहुत ज्यादा महंगा हो गया ये स्टॉक, अब इसको सेल करना शुरू करो, तो लोगों ने फिर सेल करना शुरू किया, एंड अल्टीमेटली इट इज नॉट ब्रेकिंग इट्स सपोर्ट एंड इट इज नॉट ब्रेकिंग इट्स रेजिस्टेंस, तो ना हमेशा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मैंने यहाँ कहीं पे एंटर किया है इस पॉइंट पे, तो अब मुझे मालूम है कि भाई ये स्टॉक यहां से अब नीचे गिर के सपोर्ट तक जाएगा। नहीं सॉरी, मैंने अगर यहाँ से शॉर्ट किया है स्टॉक को, और यहाँ से शॉर्ट करके मैं ये समझता हूँ कि भाई इसको सपोर्ट तक जाना चाहिए, बट अगर इसने ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, मान लो यहाँ से मेरा कॉल हो गया फेल, जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, और यहाँ से चीजें हो गई फेल, और उसने इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो गए हैं इसके बारे में। अब वो उस रेजिस्टेंस लाइन को ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई ओवरसोल्ड हो गया, ओवरसोल्ड हो गया, ऐसा नहीं है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है इसके ऊपर भी लोगों को इसमें मतलब पोटेंशियल दिख रहा है, इस वजह से लोग उस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके भी और खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं, और उसकी डिमांड बढ़ाए जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरा फेल हो भी जाता है, तो मैं इस रेजिस्टेंस लाइन को एक स्टॉप लॉस मान लूंगा,
कि भाई अगर इस रेजिस्टेंस लाइन को मेरा स्टॉक ब्रेक करता है, इसका मतलब अब ये ऊपर जाएगा, और तो मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस लाइन पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा। सो इसको बोलते हैं सपोर्ट स्टॉप लॉस या रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस, इधर वे, मतलब वाइस वर्सा। अगर मैं बाय करता हूँ तो अगर ये सपोर्ट लाइन के नीचे चले जाता है तो मैं सपोर्ट लाइन को मेरा रेजिस्टेंस मान लूंगा कि भाई लोग एकदम ही इस स्टॉक को छोड़ के भागना चाह रहे हैं, इस वजह से उसने उसका सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया। So this is what support resistance is, and this is what support resistance या support stop loss या resistance stop loss is. फिर दूसरा एक आता है मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस। मैंने डे 1 पे बताया था मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज क्या होता है, जो भी क्लोज प्राइस है उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उसके एवरेज लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 14 डेज के लिए, सो 14 डेज उसका जो भी प्राइस रहा उस पूरे को ऐड कर देंगे, मतलब मीन निकाल लेंगे, सिंपल सा तरीका है। सो फॉर ऑल 14 डेज, सो सपोज करो कि यहाँ से यहाँ तक अगर 14 डेज हो रहे हैं, सो यहाँ से यहाँ तक के बीच में जितना भी उसका प्राइस रहा उसको पूरे को एवरेज आउट कर लेंगे, मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, उसका एवरेज आ जाएगा। और उसके एवरेज के थ्रू अलोंग ये लाइन बनाई जाती है। तो ये लाइन बेसिकली क्या होती है, स्टॉक क्या होता है जनरली ऐसा ऊपर नीचे ऐसे जाता है, राइट। इट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, जैसे यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। सो वो उस चीज को स्मूदन कर देती है, जो मूविंग एवरेज होता है ना, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर स्टॉक का एवरेज होता है, इस वजह से वो उसे स्मूदन कर देता है। सो जनरली ये भी कहा जाता है, ये टेक्निकल एनालिसिस में और समझोगे ऐसा क्यों, कि मूविंग एवरेज को अगर टच कर जाएगा स्टॉक तो जनरली वो एक उसका स्टॉप लॉस या उसका एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ आप देखोगे उसने मूविंग एवरेज को टच किया, मतलब ब्रेक किया, और यहाँ से वो एक लाइन में सीधा सीधा चलता रहा। उसके बाद जैसे ही उसने वापस मतलब उसके बाद फिर उसने वापस टच किया मूविंग एवरेज में, चलता रहा, अभी तक उसने मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। यहाँ उसने मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था। सो टेक्निकली विल स्टडी दिस मोर इन टेक्निकल एनालिसिस, बट दिस इज व्हाट इज नोन एज, मतलब लोग क्या करते हैं, आपके मूविंग एवरेजेस पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लो यहाँ उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो भी देखो यहाँ से अगर उन्होंने एंट्री करी होती तो भी लगभग यहाँ तक का उनको प्रॉफिट मिल चुका होता। सिमिलरली अगर यहाँ इस पॉइंट पे उन्होंने एंट्री करी होती तो फिर उनको इतना प्रॉफिट मिल चुका होता, राइट। एंड देन सिमिलरली जब यहाँ एंट्री करी होती तो उनको फिर यहाँ एक प्रॉफिट मिल चुका होता। विल स्टडी दिस मोर इन डिटेल्स व्हेन वी डू टेक्निकल एनालिसिस, बट दिस इज व्हाट द अदर काइंड ऑफ स्टॉप लॉसेस, मूविंग एवरेज स्टॉप लॉस। ठीक है, ये एक सिंपल सा शॉर्ट एंड स्वीट मतलब स्टॉप लॉस के बारे में था। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड बट वेरी एसेंशियल फॉर बुकिंग प्रॉफिट्स। वरना क्या होता है, आप समझ नहीं पाते हो कि भाई स्टॉप लॉस कब लगाना है, क्या लगाना है, एंड देन यू एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में भी कितना प्रॉफिट लेना है हमें, कहाँ तक प्रॉफिट लेके और भाई बाहर निकल जाना है उस ट्रेड से, वो हमें पता होना जरूरी है। सो उसके लिए स्टॉप लॉस काम आता है। या हमारे अगर कुछ स्टॉक्स लॉस में जा रहे हैं तो भाई कितना लॉस हमें झेलना चाहिए, या कहाँ तक हमें झेलना चाहिए लॉस को। सो जनरली ये यूज टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस हैं जो जनरली यूज किया जाता है हमारे लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए और हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। होप यू गाइज So एंजॉयड द सेशन। एनी क्वेश्चंस, टेल मी, yeah. ask me. Can you please go back to previous slide? Yes. Okay, so I just wanted to understand whether I got it correct or not. So there is two lines, 1 and 2, on the Which graph are you talking about? moving Support average. resistance, moving average. Okay, moving average. Yeah, moving average. So if the second one is the actual values, right? And Correct. if it goes below the first one, then it will automatically exit the trade. Is that so? Correct. It will not Okay. automatically, but it's generally preferred that you take your trade out when it generally touches your moving average line. Okay. And is it like moving average? Is it calculated in real time or is it? Yes, of course, it can be calculated real time. Even if you go Okay. on Zerodha, you can apply these trailing stop losses. You can apply, I don't know if you can apply support resistance stop losses, but you can use your Python programming for calculating real time moving averages, right? It's not a very big issue for anyone who's a programmer. Okay. It's very simple. It's just moving average of your previous 14 values, 15 values, 21 values. It's just that, right? So it's very easy to calculate moving average, even in real time.
Make sense? Aisha, make sense? You're on mute. Yep, makes sense. Okay. Any other doubts? No. All right. Thank you, everyone. Thanks for your time. And I'll see you guys tomorrow.